Okay, good morning, all of you F5 Ecom students. Shall we start? Shall we start? Okay. In the last time, today is busy lecture. In the last time, we were discussing about that advantages and disadvantages of email. Am I right? Am I right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Today we ma'am. will go further. Okay. The next new point. Okay. Blog. Okay. So what is the meaning of blog? Okay. I'll read it. A blog, shortened version of weblog, is an online journal or informational website displaying the information in the reserved chronological order with latest posts appearing first at the top, and the social media platform where the writer or the group of the writers share their views on the individual subject. Okay, so what is the blog? Blog is that platform to share that personal views or personal ideas in particular form or informational platform in a chronological order. ब्लॉग आपने ये नाम सुना है, ये कंसेप्ट सुना है, ये टर्म सुना है आपने? ब्लॉग Yes, ma'am. ओके. आप देखते हैं ब्लॉग, पढ़ते हैं कभी? आप कभी ब्लॉग पढ़ते हैं? ऑनलाइन जब वो दिखाई देता है तो आप कभी पढ़ते हैं, दिखाई देता है तो आप कभी इस्तेमाल करते हैं ब्लॉग का? No, ma'am. नो. No, ओके. ma'am. ज़्यादातर स्टूडेंट ये इस्तेमाल नहीं करते. स्टूडेंट मीन्स जो अभी पढ़ रहे हैं वो, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या हाई लेवल स्टडीज के जो स्टूडेंट होते हैं या अदर कोई भी ब्लॉग पढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो ब्लॉग जो होता है वो जर्नल, जैसे हम जर्नल तैयार करते हैं ना, रिटर्न में जर्नल तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो वो वेबसाइट पे वो डिस्प्ले किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है. एक राइटर लिखता है या बहुत सारे राइटर लिखते हैं. सो डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? इजी वाला है, आगे देखते हैं. फीचर्स ऑफ ब्लॉग. फीचर्स ऑफ ब्लॉग मतलब क्या? उसका पहला पॉइंट है दैट यूजफुल कंटेंट. The first and the most important feature of the blog, useful content. Okay, whatever it is written, it may be useful, not maybe, must be useful to the viewers or to the other members, those who are engaged in the blogs. In the race of Google ranking, people try to post more and more content without paying much attention to the quality of the such post, which is in the long term proved to be detrimental for a blog. Okay, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लॉग पे कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट किया है, लेकिन वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ रिलेटेड इश्यू हमको ब्लॉग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन सभी को हम कंसिडर करते हैं? सभी को हम कंसिडर करते हैं? नहीं. नहीं. जितना हमारे लिए यूजफुल है, यूजफुल तो वो वहीं पे डाला ही जाते हैं, लेकिन हमारे पॉइंट से जितना रिलेटेड है उतना ही हम पढ़ते हैं. तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि जितना कंटेंट होगा वो ब्लॉग का, तो क्वालिटी ऑफ सच पोस्ट which in the long term proved to be detrimental for a blog. कि जितना ज़्यादा लिखा जाएगा तो वो ब्लॉग के लिए सही है या नहीं, ब्लॉग के फॉर्मेट में वह बैठता है कि नहीं, उसके लिए वो प्रूफ करना पड़ता है. आगे देखिए. As you might get in the first few search options provided by Google, it will be of no use if your content is not useful. People will ultimately skip your blog and head for blog with better content. तो क्या करते हैं जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सर्च करते हैं कि हाँ भाई गूगल पे वहाँ पे सर्च किया जाता है, हाँ, कि आपने ब्लॉग डाला है तो गूगल वो सर्च करता है, गूगल पे वहाँ पे सर्च किया जाता है कि ये सही में कंटेंट यूजफुल है. अगर यूजफुल है तो वो लोगों तक पहुँचता है, अगर यूजफुल नहीं है तो आफ्टर सम टाइम
or whenever the people see it, the people themselves keep it. The people themselves keep it. Okay, for example, जैसे हम WhatsApp में use करते हैं, WhatsApp में what are the messages necessary for us, we keep it. Otherwise, what we do, we delete it. Understand? We skip it. Understand or not? मैम फिर से बताइए ना। Okay. यहाँ पे क्या बता है? Yes, ma'am. As you might get the first few search option provided by Google. Okay, it will be of no use if your content is not useful. The people will ultimate your skip your blog. Okay, for example आपने कोई पोस्ट डाला है, okay, कि for example रिलेटेड आपका कॉलेज का डाला है, लेकिन उसमें कंटेंट यूजफुल नहीं है लोगों के लिए, okay, तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंटेंट डिलीट उनके करेंगे, डिलीट करेंगे। ओके, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या स्किप करेंगे वो। स्किप करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, एम आई राइट, यूट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कि नहीं आती है, सभी रिलेटेड आती है। हाँ मैम आते हैं। ओके, लेकिन हमें जो देखना है, हमारे लिए जो यूजफुल है, कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो यूजफुल है, कि फॉर एग्जांपल स्टडीज को लेके, ओके, मुझे आपको कोई वीडियो दिखाना है, तो वीडियो में भी मैं सर्च करूंगी कि ये बच्चों के लिए कौन सा सही है और कौन सा ज़्यादा इंफॉर्मेशनल है, तो वो वीडियो मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था। एम आई राइट? पिछली Yes, बार ma'am. बताया। ओके, मुझे आप बताइए कि जो पिछली बार जो मैंने वीडियो बताया था रॉक्स का, उसमें आवाज आ रही थी क्या? आवाज आ रही थी? जैसे आप सुन रहे हैं अभी, उस टाइम आवाज आ रही थी? ज्यादा नहीं आ रही थी, ओके, कम आ रही थी थोड़ी। ओके, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम। ओके, तो मुझे ऐसा बताना है कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन और यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा, उतना ही पीपल क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, अदरवाइज क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं या स्किप कर देते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड अभी? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे देखिए। सेकेंड पॉइंट, use the same structure for all the blog posts. Okay, the next important feature of the blog is the structure of the blog post on the blog should follow the same structure for every post. Okay, कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेटर हेड, ओके, व्हेन वी टाइप लेटर हेड, तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, एक जैसा होता है ना लेटर हेड का, लेकिन लेटर हेलो, सुन रहे हैं आप यस मुझे? मैम। हाँ, यस उत्तर मैम। हाँ दीजिए मैम कि जैसे हम लेटर हेड टाइप करते हैं, तो लेटर हेड में डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे लैपटॉप पे आपको फॉर्मेट मिलते हैं, लेकिन जब से आप स्टार्ट करते हैं उसमें आपने जो चूज किया, अगर आप अगला जो स्लाइड होगा या लेटर हेड का जो स्लाइड होगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा ना, सेम हाँ आएगा मैम, कि नहीं सेम आएगा? आएगा। ओके, यस अभी तक देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्लाइड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा है, सब जगह कैसा है, सब जगह सभी स्लाइड कैसी है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है, हेलो, सुन रहे हैं? उसका फॉर्मेट सेम है कैसा, मैम। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है ना? तो सेम है। उसी यस तरह, मैम, हाँ, सेम है। उसी तरह ब्लॉग का भी जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी पोस्ट आप हर टाइम एक पोस्ट आप जब पोस्ट करते हो, तो उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आगे, फर्स्ट यू राइट द हेडर ऑफ द पोस्ट फॉलोड बाय द मेन कंटेंट एंड द मेनू टू सर्च फॉर अ डिफरेंट पोस्ट ऑन द राइट, the recent post on the left side of the blog, and in the last conclusion of the footer of the blog post. Okay, for example जैसे हम लैपटॉप में हेडर एंड फूटर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, लेटर हेड में हेडर एंड फूटर इस्तेमाल करते हैं। हेडर हाँ मीन्स मैम। एट द टॉप एंड फूटर मीन्स एट द लास्ट, जो लास्ट में टाइप किया जाता है वो। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपने कोई टाइटल रखना है,
आपको कोई टाइटल इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे जैसे ही आगे के देखिए, ये देखिए स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। ओके, ये क्या है, हेडर है। यहाँ पे टॉप पे लिखा है ना, बड़े अक्षरों में लिखा यस है, मैम। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। ओके, हेडर। अगर इसमें जैसे मैं इसमें नीचे मैंने फूटर नहीं डाला है, क्यों नहीं डाला है, क्योंकि मैं लेटर नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ, पीपीटी बना रही हूँ ना, आपके लिए यस। नोट्स बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने फूटर नहीं डाला है। ओके, तो जब हम ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हेडर एंड फूटर, ये दोनों, हेडर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेन कंटेंट या मेनू सर्च करने के लिए हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बट सेम टाइम, उसी टाइम डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे राइट साइड पे दिखाई देती है, तो क्या करती है, तो ये जो आपने जो हेडर डाला है वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, और जो कंक्लूजन होता है, जो आगे आप नोट्स लिख रहे हैं, वो किस में चला जाता है, फूटर में चला जाता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Next point, follow the same Ma'am. pattern for all your posts. In this way, you will, or your, what is it is written here? Your real means your notes will be easy to return your blog and will be comfortable searches on your blog। कि जैसे ब्लॉग पे अपना आप खुद का आपका अकाउंट होता है, जैसे आप पोस्ट करते हैं, कमेंट पोस्ट करते हैं या कुछ भी, तो उसमें आपके लिए कि जैसे फॉर्मेट और स्ट्रक्चर एक जैसे रखते हैं, तो आपके सभी के लिए वो क्या हो जाता है, इजी वे में ढूंढने के लिए वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। समझ में आया? मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपने कोई पोस्ट किया है ब्लॉग पे, कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट किया है, तो उसका स्ट्रक्चर सेम रखना चाहिए, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, आपके लिए ढूंढना कैसे हो जाता है, इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, इजी हो इजी जाता हो है। जाता है। ओके, समझ में आया? ओके, यस मैम। मैं अभी बता रही हूँ कि जो आप घर में ही बैठे हो, क्या अभी सब घर में ही है ना? ओके, तो जब भी आप मैं आपको क्वेश्चन पूछूं या कुछ भी, कोई भी टीचर आपको क्वेश्चन पूछे, तो पीछे से जो आवाज़ आ रही है, आपके घर की जो आवाज़ आ रही है, वो तो जो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, शैबी लगता है, तो ज़रा प्लीज़ ध्यान रखिए। जिसका भी ऑडियो आप क्या बोल रहे हो वो भी रिकॉर्ड होता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। तो ये यूट्यूब पे आपको भेजा जाता है, तो पूरी दुनिया पे देखते हैं क्या, क्योंकि क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता है, तो उसका तो हमको थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, ऐड लिंक्स इन योर ब्लॉग पोस्ट whenever necessary. Okay, so whenever you post information on the blog, that link is necessary। आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो नेसेसरी हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये इजी वाला पॉइंट है। whenever that adding the blog to the other post in the blog post wherever necessary is greatly mention promotional strategies। जहाँ पे मेंशन करना चाहिए, जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे लिंक डालनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू यस मैम। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. यस मैम। Ma'am. ओके, आगे देखते हैं। इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लिक्स एंड व्यूज ऑन द ब्लॉग which will improve the credibility of your blog and more people will rely on the data share on your blog। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपने लिंक डाली है जहाँ पे जरूरी है, तो लोगों को आपको कनेक्ट करने के लिए या उस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए उनके लिए इजी जरिया बन जाता है, बहुत ही आसान जरिया हो जाता है। क्योंकि जितना आप इंफॉर्मेशन अच्छा डालते हो, जितना आप अच्छा इंफॉर्मेशन यूजफुल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका ब्लॉग होता है, लिंक डालते हो तो आपकी ब्लॉग की क्या बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे आपके डाटा पे डिपेंड होते हैं। आपने क्या डाला है, फॉर एग्जांपल कि जैसे
अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल इमेजेस ऑफ माउंटेन और दैट माउंटेन एरियाज इंफॉर्मेशन, ओके, मैंने कुछ डाला है कि बाबा हमारे भारत में या हमारे इंडिया में कि कितने सारे माउंटेन हैं, कितने रेंज में है क्या नहीं है, तो जो स्टूडेंट होंगे या जो जोग्राफिकल टीचर्स होंगे या कुछ और कोई और होगा, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ हाँ में मैम। आ रहा है? ओके, उनके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल उसकी रिलेटेड लिंक मैंने वहाँ पे डाली है, तो उनके लिए क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है कि अगर उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे, तो वो उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, उनको वहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, सिंपल वन, समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Then next Yes, point ma'am. is attractive headlines. That headlines of your article play an important role in making that real the article stay for longer period on your website. However, the check the attention grabbing the headlines for your blog is not an easy task. तो हेडलाइन, हमारे लिए हेडलाइन डालना मीन्स क्या, एकदम इजी वाला काम है। ओके, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते तो सबसे पहले क्या हमारी नज़र कहाँ जाती है, हमारी नज़र किधर Headline. जाती है, हेडलाइन पे जाती है। Headline Headlines पर हेडलाइंस पे जाती है, उस पे से हम अंदाजा लगा सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि किस बारे में लिखा गया है। अगर हेडलाइन ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपको ये इंफॉर्मेशन पढ़ना अच्छा लगेगा नहीं। नहीं। ओके, नहीं। तो जब हम ब्लॉग पे इंफॉर्मेशन डालते हैं, हेडर का इस्तेमाल करते हैं, मेन मेनू डालते हैं, मेन कंसेप्ट डालते हैं, तो उसको जो हेडर हम बोलते हैं कि उसको हेडलाइन बनाना इतना इजी काम नहीं है, इतना इजी काम है नहीं, क्योंकि सबकी फॉर एग्जांपल आप कितना उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, सॉरी उसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं, ये व्यक्ति पर डिपेंड रहता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे उतना ज़्यादा व्यूअर्स आपके पास होगा, उतने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes ma'am. ओके, जैसे हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं ना, बारीक बारीक एकदम जो हैंड राइटिंग होते हैं, जो छोटे छोटे हैं वाले हैंड राइटिंग होते हैं, उसको हम पढ़ना पसंद करते हैं। इंफॉर्मेशन सही है तो भी हमको पढ़ना पसंद करते हैं, जितना नहीं, क्यों नहीं? ज्यादातर नहीं करते। ज्यादातर नहीं करते, नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना बड़े अक्षरों में अच्छे से लिखा होता है वो हमको ज्यादा पसंद आता है कि हाँ तुरंत नजर वहाँ पे जाती है, समझ में आता है, इसकी वजह से तो हेडलाइन में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव करना चाहिए। आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे देखिए, इट रिक्वायर्स स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू राइट सच हेडलाइंस। द चॉइसेस ऑफ हेडलाइंस इन द ब्लॉग पोस्ट कैन अट्रैक्ट द ट्रैफिक ऑन योर ब्लॉग। जैसे मैंने अभी बताया कि जितना ज़्यादा अच्छा हेडलाइन होगा उसके लिए भी स्किल्स लगता है, उसके लिए भी क्रिएटिविटी लगती है। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ बनाने के लिए बोला है, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको प्रोजेक्ट अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल जैसे आप पीपीटी सभी देख रहे हैं तो सभी पीपीटी एक जैसे है, अभी तक आपको जो जो पीपीटी आए सभी पीपीटी नहीं। एक जैसे नहीं। कि थोड़ा सा कुछ No, ma'am. अट्रैक्टिव है, कलर अलग है, हाँ मैम। अलग है। थोड़ा। अलग है, तो उसके लिए क्या होता है, अट्रैक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल पिक्चर्स डाले हैं, ओके, इमेजेस डाले, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन आता है कि हाँ और कुछ लिखा है यहाँ पे, पढ़ा है, ऐसा कुछ अट्रैक्शन आता है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन ही हो तो आपको मजा आएगा, इंफॉर्मेशन और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही होगा नहीं। तो आप मजा आएगा, नहीं आएगा। नो नहीं। मैम। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ मैम। यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। ओके, then next point is write relevant content. Relevant means it is related to that particular point. It is important to write the relevant post on the blog. Your readers will be disappointed if they will find the sports article on beauty blog. समझ में आया अभी? ये पॉइंट एकदम इजी है। Make sure all your articles are in the same format or in the same structure.
That relevancy in the content of your post shows the professionalism of your writing. Okay, तो blog में हमको फॉर एग्जांपल ब्यूटी का हो या हेल्थ का हो या स्पोर्ट्स का हो, कोई भी आर्टिकल हो, पॉलिटिक्स से लेकर हो या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से लेकर हो या कोई स्टोरी हो, तो जब हम ब्लॉग पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई स्टोरी बता रही हूँ, पर मैं जब आउट ऑफ स्टोरी चली जाऊँ कि हाँ उसके पॉइंट से कुछ रिलेटेड ही नहीं है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, योर रीडर्स विल बी डिसअपॉइंटेड इफ दे फाइंड द स्पोर्ट्स आर्टिकल ऑन द ब्यूटी ब्लॉग। अगर आप ब्यूटी ब्लॉग पढ़ रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स आर्टिकल डाल दिया तो उसका कुछ कनेक्शन है? नो मैम, नहीं है। नहीं है। तो जो आप डाल रहे हैं, ओके फॉर एग्जांपल ब्यूटी से ब्यूटी रिलेटेड आर्टिकल डाल रहे हैं या कुछ टिप्स डाल रहे हैं, तो वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स पे डाल रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेके कि कौन से साल में कौन सा स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ था, कौन कौन प्लेयर थे या किसने कितने सालों तक खेला, तो उसमें आप ब्यूटी का डालेंगे तो चलेगा? ब्यूटी का डालेंगे नहीं। तो चलेगा? नहीं नहीं चलेगा। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉग पे पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव योर पर्सनल टच मीन्स blogs were started when individuals started writing his own those views or information on the particular topic. Even though in the past times multiple writers write articles for a single blog, but it but the makers that one topic should be designated to single writer, and so that the personal touch of the writer can be maintained for a long time. Okay, जब हम ब्लॉग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया कि पर्सनल टच आपका होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि पास में जब ब्लॉग होता था, ये पोस्ट किया जाता था, तभी सभी राइटर उसे एक ही पोस्ट पे या एक ही ब्लॉग पे सभी अपनी इंफॉर्मेशन डालते थे। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था कि सभी जगह पे, एक ही जगह पे सभी राइटर का आपको देखने को मिलता है। लेकिन इन द रिसेंट टाइम दैट इंडिविजुअल राइटर हैव दैट इंडिविजुअल अकाउंट ऑन द ब्लॉग, कि उसका खुद का जो पर्सनल टच होता है, कि उसका खुद का जो एक्सपीरियंस होता है, वो उसके लिए बेटर होता है। तो अभी का जो ब्लॉग डिजाइनेटेड किया गया है, तो वो पर्टिकुलर सिंगल राइटर के लिए मेंटेन किया गया है कि वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन वहाँ पे रहता है। So do you understand this point? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. The writer his own style to communicate with his reader and the reader feel connected with the writer. Okay, कि राइटर ने किस तरह से लिखा है, अगर अपने रीडर से कम्युनिकेट करना चाहता है और रीडर क्या फील करता है वो कम्युनिकेशन में, और राइटर क्या फील करता है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। पहले क्या होता था कि सभी राइटर एक ही ब्लॉग पे डालते थे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा केओस होने की पॉसिबिलिटी थी कि सभी के वहाँ पे ब्लॉग पे एक ही सभी राइटर के वहाँ पे ब्लॉग दिखाई देते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता था, अभी जो सबको सेपरेट ब्लॉग दिया गया है कि हर एक राइटर का सेपरेट ब्लॉग होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको वहाँ के उसके रीडर अलग होंगे, उसके व्यूअर्स अलग होंगे, उसका एक ही एडिटर होगा। ओके, एडिटर मीन्स राइटर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सुधा मूर्ति, नाम सुना है आपने? सुधा मूर्ति राइटर का, सुधा Yes. मूर्ति। ओके, यस मैम, सुना है। हाँ, उसकी जो ब्लॉग्स होते हैं आपने कभी पढ़े हैं? उनकी स्टोरी बुक कभी पढ़ी है? कभी पढ़ी है? नहीं। शायद नहीं पढ़ी होगी। ओके, आज आप सर्च कीजिए सुधा मूर्ति का, आप सर्च कीजिए उनके बुक्स सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे बुक्स वहाँ पे दिखाई देंगे, उन्होंने कौन से बुक लिखे हैं।
तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने कौन से बुक लिखे, उनके कौन से सब्जेक्ट है, वो क्या, वो खुद का उनका जो हम बोलते हैं उनका एजुकेशन क्या था, और उन्होंने ये राइटिंग का जब स्टार्ट किया तो उनके राइटिंग में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको ये पता चलेगा। आज आप सर्च करके देखिए सिर्फ, ओके। आज आप सर्च करेंगे सुधा मूर्ति, मैंने आपको क्या बोला, सुधा मूर्ति का स्टोरी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। फिर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल है कि हमारे मराठी में वपू काळे, ओके, नाम सुना है वपू काळे? वपू काळे, हेलो? नहीं मैम। नहीं, नहीं मैम। तो उनका भी आप नो ब्लॉग मैम। का सर्च कीजिए तो आपको पता है उनके बहुत सारे, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं रिलेटेड सोशल इश्यूज, रिलेटेड पर्सनल लाइफ, कि फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ में कैसा होना चाहिए, तो वो आपको वपू काळे के जो उनकी जो बुक्स होते हैं वहाँ पे दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके। यस मैम। आगे का पॉइंट देखिए, विजुअल मीडिया। Visual media plays an important role to grab the attention of your readers. Therefore, it is important to select the picture or GIF or video clips which are related to the content of the post. The right choice of the media can help your readers to understand the post easily, to interpret the same meaning that you wanted them to interpret. Okay, if I wanted to communicate with you that, for example, if I giving, for example, just look at here, earlier picture, earlier slide. Okay, what is this? Negative impact on technology, negative impact of technology on society, less active lifestyle. तो उसको रिलेटेड ये मैंने आपको इमेज यहाँ पे डाला है, उसको रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे इमेज डाला है। हाँ। हाँ, तो उसको आपके Yes, साथ वो जो पॉइंट था, जैसे मैंने आपको पिछली बार समझाया था, वो जो पॉइंट था कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपको ये पॉइंट से वहाँ पे रिलेटेड पोस्ट डालिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया था, ओके, मशीन का एग्जाम्पल दिया था, तो उससे क्या होता है कि ये पॉइंट समझने में क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इफ आई वांट टू इंटरप्रेट विथ यू दैट in a simple way, that I uh, pick up the picture or I pick up the images from the Google to related my particular topic. If I select the particular image for this particular effect or a particular link or a particular topic, then it will be more understandable to you. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। यस मैम। यस इतना इजी नहीं है पढ़ना ये आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज द डिस्कशन। योर पोस्ट मस्ट बी एनकरेज योर रीडर्स टू give their views on that you have written. In this way you will get maximum common post which will help to improve the Google ranking of your blog. As a result of you will get more traffic to your website. More traffic to your website means to attract the readers to your blogs. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनकरेज द डिस्कशन। आप जब भी पोस्ट डालते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लॉग पे डाला गया है, तो वो रीडर्स को कैसा होना चाहिए, रीडर्स के लिए कैसा होना चाहिए, उनको खुद एक्साइटमेंट हो या उनको खुद पढ़ने का मन करे, ऐसा होना चाहिए। कि जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम कॉमन पोस्ट डालेंगे तो वो गूगल रैंकिंग के हिसाब से वो क्या होगा, आपके लिए जिसने पोस्ट डाला है ब्लॉग पे डाला है, तो सब आपके लिए वो रीडर्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ मैम आ रहा है।
हाँ मैम आ रहा हाँ है। मैम। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। अभी लेंथ कितना होना चाहिए? इट हैज ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम फॉर ब्लॉगर्स टू चूज द राइट post of the blog. If you discuss with your fellow bloggers, you will learn no bloggers have the knowledge about the right length of the blog. जैसा कंटेंट जरूरी है, कंटेंट में वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जरूरी है, कि उसका स्ट्रक्चर जरूरी है, तो उसके लिए ब्लॉग में उसका लेंथ भी जरूरी है। कि कभी कभी हो जाता है कि इफ यू आर डिस्कसिंग with your fellow bloggers, okay, तो you will learn that कि bloggers को पता ही नहीं है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। आप जैसे बहुत सारे bloggers होते हैं कि नहीं, कि जो अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं। am I right? am I right? Yes, ma'am. यस am I मैम। right? okay, for Yes, example, ma'am. जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे Yes, दूं कि जो आपका जो वीडियो होता है, आपको जो अभी ये वीडियो पोस्ट किया जाता है, तो वो हार्डली कितना मिनट का होता है? हार्डली कितना मिनट का होता है आपका जो लेक्चर का जो वीडियो आपको 35 पोस्ट? 30 to 30 35 30 to 35 35। 30 मिनट। to ओके 35. ओके, पर अगर वो 1.5 घंटे का हो गया तो? 1.5 घंटे का हो गया तो सुनना पसंद करेंगे ज़्यादा? नहीं No, थोड़ा बोर हो ma'am. जाएंगे। नहीं, थोड़ा नहीं, सा ma'am. थोड़ा सा बोर हो बोर हो जाएंगे। जाएंगे। लेंथ बढ़ गई उसकी, तो उसको डाउनलोड करने में भी उतना टाइम जाता है, उसको सेट करने में भी उतना टाइम जाता है। और जो व्यूअर्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक यू व्यूअर्स, ओके, जैसा भी व्यूअर्स है, तो वो बोर हो जाते हैं। तो लेंथ थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। There are the people who say keeping the length between 500 to some words will help to get Google ranking. But in my point of view, only good content, no matter what the length of the post will be, make the right Google ranking. तो जब हम गूगल इस्तेमाल करते हैं तो गूगल रैंकिंग के हिसाब से ब्लॉग पे 500 वर्ड्स या मोर देन 500 वर्ड्स वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कुछ ब्लॉगर ऐसा सोचते हैं कि उसके हिसाब से 500 वर्ड्स है, लेकिन उसमें कोई भी पर्टिकुलर टर्म या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका क्या मतलब? पर्टिकुलर उसका इंफॉर्मेशन है तो उसका क्या मतलब? यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि अगर ब्लॉग पे कोई भी पोस्ट आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, तो वो कंटेंट, हाँ, कितना लंबा हो या कितना छोटा, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट और यूजफुल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ हाँ में आ मैम। रहा है? क्वालिटी क्वालिटी हाँ अच्छा मैम। होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कौन से एग्जांपल दूंगा? फॉर एग्जांपल कि आप जब स्कूल में जाते थे, ओके, जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, ओके, तो अभी का जो एक हम बोले कि एक रूल निकाला है जो गवर्नमेंट ने, हाँ, 1 to 7 स्टैंडर्ड तक या 8 स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं किया जाता। 1 to 8 स्टैंडर्ड को किसी को फेल नहीं किया जाता। उसकी कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देती है आपको? हाँ कभी मैम, कभी ज्यादातर बच्चे पढ़ाई नहीं हाँ, करते उसकी वजह से। पढ़ाई नहीं करते। बेस क्लियर होता है उनका? बेस क्लियर होता है? नहीं नहीं होता। बेस क्लियर नहीं होता है। बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं, बच्चों को पता है कि मैंने मेहनत किया नहीं किया, मैं पास तो हो ही जाऊंगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं डस्ट, वो डस्ट आगे 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 उसको पुशअप किया जाता है, और फिर वो डस्ट कभी ना कभी वो क्या होता है, बाहर फेंका जाता है ना, बाहर हाँ, फेंका उसका जाता है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा देता है। तो मैंने वही बोला, क्वांटिटी होना जरूरी है या क्वालिटी होना जरूरी है आपके हिसाब से? कोई भी चीज अच्छी हो, होना जरूरी है। क्वालिटी होना जरूरी है। ओके, क्वालिटी होनी जरूरी है। क्वालिटी होनी जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल आप बीकॉम हो गए, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन आपको क्रेडिट क्या और डेबिट क्या ये पता नहीं, तो उसका मतलब कुछ रहा क्या? उसका मतलब नो कुछ मैम, रहा नहीं। नहीं। नो आपको मैम। इकोनॉमिक्स नहीं पता, आपको बीसी नहीं पता, आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छी, तो उसका मतलब हुआ ग्रेजुएशन का? नो। ग्रेजुएशन का मतलब हुआ
फॉर नो एग्जाम्पल मैम। FC नहीं आपका कुछ रिलेटेड मतलब नहीं। सोशल इश्यूज है, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर हम बोलते हैं सोसाइटी, तो उसका क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना, तभी हम बोलते हैं कि हाँ मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ना, कि जिसको सब कुछ आता है, जिसको सब कुछ पता होता है, उसको ही हम मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं। एम आई राइट? यस एम आई मैम। राइट? अगर आपको मैं ऐसा Yes, बोल ma'am. दूं फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक Yes, ma'am. एग्जाम्पल दें, यस मैम। दूसरा एक एग्जाम्पल देना हो, Yes. क्रिकेट टीम खड़ी की जा रही है, इंडियन क्रिकेट टीम, पर उसमें क्वालिटी वाले जो इंसान नहीं लिए गए, तो फिर उस टीम का कुछ मीनिंग होगा क्या? नो मीनिंग मैम, वो होगा? हार नो, जाएगी। वो हार No, जाएगी। ma'am. तो वहाँ पे क्वालिटेटिव पर्सन लिए जाते हैं कि किसी का बैटिंग अच्छा है, किसी का फील्डिंग अच्छा है, क्योंकि हर एक इंसान का क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंडिविजुअली, जो इंसान हर एक इंडिविजुअल कैसा होता है, अलग होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, सबका एक प्लस और माइनस पॉइंट होता है। एम आई राइट? आपने Yes, ma'am. सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा होगा, वो जब छक्के यस लगाते हो मैम। तो हाँ मैम, देखा। उसकी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो बॉलिंग है एज कंपेयर टू दूसरे जो बॉलर्स हैं, उतनी अच्छी है कि उसकी उतनी बॉलिंग अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं। बॉलिंग है नहीं, नहीं। तो बैटिंग में अच्छा है वो उतना, ये हम उसका बोलते हैं कि उसका बॉलिंग इतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल कैप्टनशिप, MS धोनी का अच्छा रहा या विराट कोहली का, सबका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, कैसा किसका अच्छा था कैप्टनशिप? MS धोनी। MS धोनी। क्यों? MS धोनी। क्यों? बिकॉज ही इज वेरी काम पर्सन, ही हैंडल्स द सिचुएशन विथ कोल्ड माइंडेड, काम माइंडेड। एम आई राइट? और सबका अलग होता यस है, मैम। नेचर अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, पर वो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव है, मैं विराट को क्वालिटेटिव नहीं बोलूंगी ऐसा नहीं, वो भी क्वालिटेटिव है क्योंकि उसका खेल अच्छा है, लेकिन उसका नेचर थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग है, अग्रेसिव है, पर वो क्वालिटेटिव है कि नहीं? बंदा तो क्वालिटेटिव है ना, यस बंदा मैम। क्वालिटेटिव है, तो उसकी वजह से कोई भी पोस्ट हो या कुछ भी हो, या कोई भी खेल या कुछ भी काम हो, तो वो कैसा होना चाहिए? क्वालिटेटिव होना चाहिए। समझ में आया? यस मैम। ओके, Yes. Yes, ma'am. यस मैम। लास्ट पॉइंट, यस मैम। easy read. Even though you have an excellent vocabulary, don't try to show that your blog post. Choose the word of your blog post correctly. You are well versed with the meaning of complex words, but no readers. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा vocabulary है, ओके, आपको सब कुछ आता है, लेकिन वो रीडर्स को समझ में नहीं आया, तो उसका मीनिंग कुछ है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स No, यूज ma'am. किए, नहीं मैम, नहीं है। कोई कोई उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, फॉर मैम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ब्ला 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 करके सब कुछ बता दूं, पर आपको एक पॉइंट भी समझ में नहीं आएगा, तो मेरा जो इतना मेहनत किया होगा, तो क्या आ जाएगा? मीनिंगलेस ना, पानी फिर वेस्ट हो जाएगा, जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगा।